தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவ நீரே. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே. நிமிர செய்பவ நீரே. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டனர். எதிர்த்தெழுந்தோர் எத்தனை மிகுந்து விட்டனர். எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டனர். எதிர்த்தெழுந்தோர் எத்தனை மிகுந்து விட்டனர். ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை, தளர்ந்து விடுவதில்லை. சோர்ந்து போவதில்லை, தளர்ந்து விடுவதில்லை. தகப்பனே தாங்குகிறீர், என்னை தள்ளாட விட மாட்டீர். தகப்பனே தாங்குகிறீர், என்னை தள்ளாட விட மாட்டீர். கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. கேடகம் நீரே தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தகப்பனே தந்தையே நிமிர செய்பவ நீரே. தகப்பனே தந்தையே நிமிர செய்பவ நீரே. படுத்துறங்கி மகிழ்வுடனே விழித்தெழுவே. ஏனெனில் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றாய். படுத்துறங்கி மகிழ்வுடனே விழித்திருந்தேன். ஏனெனில் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கிறார். அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே. அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே. வெற்றி தரும் கர்த்தர் என்னோடு. தோல்வி என்றும் எனக்கில்லையே. வெற்றி தரும் கர்த்தர் என்னோடு. தோல்விதான் எனக்கில்லையே. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவ நீரே. என் தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர செய்பவ நீரே. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே. செய்பவ நீரே. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவ நீரே. தலை நிமிர செய்பவரும்
ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அறிவு கெட்டா பேரமைதி பாதுகாக்குதே. ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அறிவு கெட்டா பேரமைதி பாதுகாக்குதே. நீர் விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை, நீர் விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை தியானம் செய்கிறேன். தினம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன். அவைகளையே தியானம் செய்கிறேன். தினம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன். கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, செய்பவர் நீரே. கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம்மை ஒரு நாளும் ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நம்மளை தலை நிமிர செய்த தேவன் ஒருவரே, தேவாதி தேவன் நம்ம இயேசு மட்டுமே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நன்றி நன்றி ராஜா. கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. விடுதலை கீதங்கள்ல 82வது பாடல், நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன். எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல். கையில தட்டி ஆரவாரமாக உள்ளத்தில் ஆரத்திலிருந்து நாம் படிப்போம். ஆமென். தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ராஜா. நன்றி. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன், நிம்மதி நிம்மதியே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. அடைக்கலமே அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை. அடைக்கலமே அதிசயமே, ஆராதனை ஆராதனை. உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. வல்லவரே நல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. வல்லவரே நல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. பலியான செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பலியான செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே.
பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்த ரத்தம் எனக்காக அல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்தரே ஆராதனை ஆராதனை. பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை. எத்தனை இன்னல்கள் உம்மை பிரியேனையா, எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரியேனையா. சித்தமே செய்து சாட்சியாய் வாழ்வேன், நிச்சயம் நிச்சயமே. சித்தமே செய்து சாட்சியாய் வாழ்வேன், நிச்சயம் நிச்சயமே. ரட்சகரே இயேசுநாதா ஆராதனை ஆராதனை. ரட்சகரே இயேசுநாதா ஆராதனை ஆராதனை. நிம்மதி நிம்மதியே இயேசுவே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தே, நிம்மதி நிம்மதியே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஆர்வமுடனே பாடி துதிப்பேன், ஆனந்தம் ஆனந்தமே. அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை. அடைக்கலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை. ஹல்லேலூயா ரிஷபதரி. ஹல்லேலூயா நன்றியோர் துதிக்கிறோம் சோதராண்டவரே. ஹல்லேலூயா நன்றியோர் துதி செலுத்துகிறாண்டவரே. ஹல்லேலூயா அந்த தமிழ் ஆராதனை பிரசனம் எங்களோடு கூட வழிநடத்திய மகா கிருபைக்காக நன்றியோர் துதிக்கிறோம் சோதராண்டவரே. முழுமையாக எங்களை தாழ்த்துகிறோம். ஆராதனையின் மீதியான பகுதியை நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறாண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டி கேட்க நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். Song 179 ओल्ड बुक, पुराने पुस्तक में, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा. Amen. Praise God. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा. प्रभु का
धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना डूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना डूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। भद्र समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भद्र समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जो है प्यारा मुझे, यीशु ही है जो प्यारा मुझे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु ही है जो प्यारा मुझे, यीशु ही है जो प्यारा मुझे। मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अधमोहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमोहा पड़ा, उसने दाखरस और तेल ढूंढेला, उसने दाखरस और तेल ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अधमोहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमोहा पड़ा, उसने दाखरस और तेल ढूंढेला। मेरे साथ आओ, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मेरे साथ यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, ओ यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को अपना लिया, ओ यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, ओ यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को अपना लिया। ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की तारीफ हो, यीशु नाम की तारीफ हो, यीशु नाम की तारीफ हो, यीशु नाम की तारीफ हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की तारीफ हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की तारीफ महिमा, यीशु नाम की महिमा हो, यीशु नाम की महिमा हो, यीशु नाम की महिमा हो, यीशु नाम की महिमा हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की महिमा हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की तारीफ हो। स्तुति, यीशु नाम की स्तुति
हो, यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की स्तुति हो। बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। बीमार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. We are healed by the stripes of Jesus. Bible says we are healed by his wounds. Jesus took all our sins, all our curses, all our sicknesses and infirmities upon him, and he died for you and for me and for the whole world. He became curse on our behalf. हमारी ओर से वो श्राप हुआ, सारे श्राप, all the curses, Heavenly Father, hallelujah, laid on him, hallelujah. He put all the curses and infirmities and punishment upon Jesus. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you all. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Father. Thank you, Father. And you loved the world so much that you gave your only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have an eternal life. Hallelujah. Thank you, Jesus, for coming into my life. Thank you, Jesus, for coming into this world. Thank you, Jesus, for great work of salvation. Thank you, Jesus, that you paid the full price, hallelujah, of our sins. And Father, you purchased us by the precious blood of Jesus. Oh, hallelujah. Dear brothers and sisters, you know that our Heavenly Father has purchased us. He has given full price of his own Son and his precious blood, and we are healed. We are purchased, and the Bible says we are not of us own. Hallelujah. We are not the owner of our lives. He owns our life. Hallelujah. He owns our body. He is the King and the ruler of our life. Give everything to the Lord. Give yourself, everything to the Lord, and praise him from the depth of your heart. Praise him and worship him. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यार करने को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यार करने को। तू काल्वरी गया, मेरे लिए मर भी गया। धन्यवाद प्यार करने को। कलवरी गया, तू काल्वरी
वापस आएगा, हमें संग ले जाएगा। धन्यवाद प्यार करने को, तू वापस आएगा, हमें संग ले जाएगा। धन्यवाद प्यार करने को, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यार करने को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यार करने को, धन्यवाद प्यार करने को, ओ धन्यवाद प्यार करने को। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, ओ राजा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे यीशु, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया, गाओ मेरे साथ। हालेलुया, प्यार है तुझसे, ओ राजा, हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, ओ प्यार है, यीशु तुझसे ही प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्रभु, ओ प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे यीशु, तुझसे सर्वशक्तिमान पवित्र पिता, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद और महिमा करता हूँ। तेरी महान और पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, तेरे किए हुए उपकारों के लिए और तेरे अद्भुत प्यार के लिए हम तुझे क्या दे सकते हैं। तेरा प्यार सागर से भी गहरा है और आसमानों से भी ऊंचा है मेरे प्रभु पिता। हालेलुया मेरे प्रभु पिता, धन्यवाद करता हूँ तेरे प्यार के सागर में तूने हमें समा लिया है प्रभु जी। तूने हमें प्रभु तेरे प्यार के सागर में अपना लिया है और तूने हालेलुया अपनी प्रेम और करुणा से हमें ढक दिया है प्रभु जी। इस कारण हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
जी। पूरा हफ्ता आपने तो संभाला। आज जितने भी Hallelujah, लोगों ने Lord. प्रभु तेरे साथ सानिध्य में बैठने के लिए प्रभु Jesus. परमेश्वर मन बना लिया और बैठे हैं प्रभु जी अपने अपने घरों में, जहां भी तेरे लोग बैठे हैं उन Yes, सबों Lord. के लिए धन्यवाद। Bless उनके you. दुख संकट कष्ट पीड़ाओं के लिए परीक्षाओं के लिए धन्यवाद प्रभु। जिस प्रकार से तेरे लोग जा रहे हैं, जिस स्थिति से जा रहे हैं प्रभु जी, विश्वास में बने रहने के लिए सहायता Yes, करो Lord. प्रभु जी। हालेलुया। इन दिनों में हम सबों को विश्वास की जरूरत है प्रभु जी। हमारा Oh, विश्वास Jesus. कमजोर ना पड़ने दे, ना हम विश्वास से भटक जाए, ना हम अन्य शिक्षाओं में जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ हर परिवार की सुरक्षा कर, हर परिवार को प्रभु तू संभाल के रखना, हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति से, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आगे का सारा समय हम तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Psalm 113, 113। रेडी? यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। இது முதல் என்றென்றைக்கும் கர்த்தருடைய நாமம் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட கடவுது। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। உன்னதங்களில் வாசம் பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனாய் கர்த்தருக்கு சமமானவர் யார்? हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है। அவர் சிறியவனை வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகளை பார்க்கும்படி நம்மை वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। அவனை பிரபுக்களோடும் தமது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் அதிகாரம் பண்ணுகிறார்। உட்கார பண்ணுகிறார். वो बांझ को सब साथ में, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति हालेलुया, करो, आमेन। आमेन। टाइम ऑफ टेस्टिमनी। परमेश्वर को स्तुति करता हूँ इस समय पर परमेश्वर ये गवाही देने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अब तक ये 9 महीना मुझे और परिवार के साथ अच्छी सारी जरूरत को देकर अब तक चलाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। खास करके ये गवाही इसके लिए देना चाहता हूँ। अब परमेश्वर को कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर का बच्चे लोग, परमेश्वर को हम सब, परमेश्वर को जो चीज परमेश्वर जो चाहते हैं, जो विश्वास के साथ उनको जो देने के टाइम देना और उनकी प्रार्थना देने का, ओनली पैसा नहीं है, परमेश्वर को समय देना है। परमेश्वर को दिन में कम से कम 1 घंटा परमेश्वर को मिनिमम देना है। मैं कलिसिया के सामने ये गवाही इसके लिए देना चाहता हूँ। प्यारे सारे भाई बहन लोग, आप लोग परमेश्वर को दो देने वाला चीज देखकर तो देखो, उसके बाद क्या परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेगा। क्यों मैं खुद महसूस करता हूँ, इस 6 महीने इतने लॉकडाउन दुनिया में कितने लाखों का जॉब चला गया, पहाड़ नहीं, दुनियादारी का प्रॉब्लम है, फिर भी परमेश्वर को साथ रहने वाले बच्चे को साथ रहने वाले मतलब परमेश्वर के साथ सच्चाई रहना है। परमेश्वर को देने वाला समय देना है, समय को देने वाला जो 10th भाग देना है, और फिर दूसरे लोग जिस लोग के साथ अपने कलिसिया के साथ जुड़ा हुआ रहना है, प्यार एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहना है। सारे चीज परमेश्वर को हम देने से परमेश्वर हमारा हर जरूरत को पूरी करता है। मैं इसलिए ये बोलता हूँ, ये गए सितंबर मंथ में, ये 2-3 महीना 6 महीना, ये सितंबर मंथ में इतनी लॉकडाउन में दुनिया में मतलब बिजनेस नहीं है, वो नहीं है, पेमेंट नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, दुनियादारी का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आप लोग को ये कलिसिया का सामने कहना चाहता हूँ, प्यारा अरे कलिसिया मेरे मतलब जो मैं लास्ट ईयर से
हाईएस्ट बिजनेस किया हुआ है कंपनी में। इतना परमेश्वर ने आशीष करके दिया। आप लोग दुनिया इतना रो रहे हैं, मेरे पास बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है। मेरे इतनी कंपनी के परमेश्वर का आशीष, मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर का आशीष मेरे साथ रह के इतना बिजनेस किया। 50% मोर देन कंपनी के एक्सपेक्टेशन से बिजनेस किया, और कलेक्शन भी 200% जो कंपनी की जरूरत था उससे 100 गुना ज्यादा किया। क्यों किया? ये कैसा परमेश्वर ने आशीष किया? क्योंकि परमेश्वर का सब में सारे चीज सच्चा देने से परमेश्वर जरूर आशीष करेगा। ये गवाही कलीसिया सामने देने के लिए परमेश्वर मदद किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। जीसस। Okay. Praise God. और कोई गवाही? Praise God. Yes, Samuel. Samuel. Praise Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Praise Lord. मैं अपना वो 6 महीना इसमें से संभाला, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरा पर एक बार आना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उधर भी काम पे हो, इधर भी परिवार ने हम लोग को संभाला, इसके लिए इसमें से का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा है, एक कंपनी में पहली बार बड़ा जॉब का ट्रांसफर टेस्ट करने का था, कुछ फैसिलिटी नहीं था, इतना मजबूरी तकलीफ नहीं था, लेकिन फिर भी ने वो उतना बड़ा जॉब को टेस्ट करने में क्या करूं मुझे सोच रहा था, लेकिन कुछ कैसा करूं क्या करूं, मैं ऐसा बहुत प्रार्थना किया था परमेश्वर को, लेकिन इतना आसान से मेरे को करने के लिए मदद किया, बुद्धि दिया, और आदमी से जो मदद चाहिए वो भी मेरे को मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Amen. Praise God. Hallelujah. मेरी छोटी सी गवाही है, छोटी सी यानी बड़ी गवाही है। गए हफ्ते में एक दिन मैं सुबह उठा और कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जैसे मैं सुबह उठा तो जैसे उठकर मैं बैठा वैसे ही मैं गिर पड़ा। अचानक मेरा सिर चकराने लगा, डिजीनेस हुआ और मैं गिर पड़ा सैमुअल के ऊपर, और मुझे कुछ पता ही नहीं चला कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कोई संकेत नहीं था, पहला कोई ऐसा चिन्ह नहीं था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा सिर चकराने लगा। जब मैं सोता हूं तो मुझे चक्कर आने लगा, जब सोकर उठता हूं तो भी मैं चक्कर आके गिर पड़ता हूं, मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, और इस तरह की से समस्या आई। और फिर मैंने चेक करवाया डॉक्टर के पास जाके, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल है जो खतरनाक होता है, दिल को हृदय को यानी हार्ट को ब्लॉक कर देता है, तो वो जिस टाइप का कोलेस्ट्रॉल रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उस वजह से मुझे थकान भी होती थी और चक्कर भी आती थी। बट थैंक गॉड, सही समय पर परमेश्वर ने मेरी सहायता की, और जो भी समस्या थी उसकी जड़ पता चली, और मैं फिर प्रार्थना करने लगा, और कलीसिया के लोगों ने भी, आप लोगों ने भी प्रार्थनाएं की, और साथी वाली कलीसिया के लोगों ने प्रार्थनाएं की, उपाय भी किया। और कल से ये जो चक्कर आना और फिर सोते समय चक्कर आना, पूरा ऊपर दुनिया गोल गोल घूमती थी या फिर मैं घूमता था, इस तरह से मुझे महसूस होता था। लेकिन कल के दिन, कल शनिवार बराबर 8 दिन में या 7 दिन के अंदर प्रभु ने मुझे उस बीमारी से छुटकारा दिया, और अब मेरा कोई बीपी नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर भी नहीं है, और मुझे अन्य जो बीमारियां दिखाई गई वो भी नॉर्मल हो गई हैं, और अब मैं पहले से काफी तंदुरुस्त हूँ। थोड़ा सा अंदर से कमजोरी महसूस करता हूँ, लेकिन बाकी जितने भी कुछ बीमारियां दिखाई दी उसमें से प्रभु ने मुझे बहुत हद तक कंट्रोल में लाया है और नॉर्मल लेवल में आया है। सो मैं आपके प्रार्थनाओं के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और आपको भी धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, और आगे परमेश्वर आपको और हम सबको ऐसे ही संभाल के रखे।
यीशु के आने के दिन तक। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। और किसी और कोई भी गवाही है? ओके, गो अहेड ब्रदर। बस निकले सर। हालेलुया। आगे बढ़ने के पहले एक सूचना देना चाहता हूँ। एक तो सूचना है देखो अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप में दिया, अगले हफ्ता से 9:40 के बाद कोई भी हर एंट्री लेगा तो एंट्री नहीं दिया जाएगा। प्लीज आप किसी को भले पास्टर बोलने के लिए मतलब हार्ड लगेगा, लेकिन बस कलीसिया में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए। हम ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन में अटेंड करने में भी 9:30 बजे कोई दिक्कत हो सकती है, जिसको कनेक्टिविटी वो एक्सेप्टेड है, तो अदरवाइज 9:30 की कोशिश आप लोग से विनंती है, कृपया 9:30 को अटेंड कर लो। कलिसिया हम अंत के दिन में है, एक एक कलिसिया में इतनी प्रार्थना होती है, 9:30 बजे हर प्रार्थना है, 9:20 को आ जाओ घर को परमेश्वर कलिसिया में। अभी तो कलिसिया चालू नहीं है, 9:30 की प्रेयर होती है, तो 9:20 को आप अपने आप को प्रार्थना, अपना कलिसिया का प्रार्थना अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रार्थना करके 9:30 तक आप अटेंड करो। 9:25 मैं 9:15 से ऑनलाइन हो जाता हूँ, ताकि कोई एंटर कर सके तो उनको रुकावट नहीं होना चाहिए करके। प्लीज 9:30 के पहले कोशिश करना अटेंड करने का। हम अंत का दिन में है, पर अभी आप लोग देख रहे दुनिया में इतना प्रॉब्लम है, फिर हम इतना अच्छी तरह से है, परमेश्वर की कृपा है, और कुछ नहीं कर सकता है। आपका अपने पास पैसा रहेगा, मेरा बड़ा जॉब रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस परमेश्वर के समूह में अपने आप को अर्पण करो परमेश्वर, और 9:30 बजे अटेंड करो। और हो सकता है किसी को कनेक्टिविटी रहेगा, जो ज्वाइन कर लिया फिर उनका डिस्कनेक्ट हो जाता, उनके एंट्री किया जाएगा। अदरवाइज 9:45 के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दिया जाएगा। किसी को मतलब हम लोग को किसी को हार्ड लगेगा, बट ये एक डिसिप्लिन चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ पास्टर भी ये अग्री करेंगे। और दूसरी बात, खास करके पास्टर के लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। हर एक जन अपनी पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर के लिए पास्टर के लिए प्रार्थना कर लो। उन्होंने इतना कलीसिया मतलब सेवका है, उनकी कमजोरी हेल्थ इश्यू के लिए हम लोग प्रार्थना करना हम हर एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे ये दोनों विनती है, और ये विनती करते और आगे मैं पढ़ता हूँ। जो ब्रदर राज ने कहा, डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन के बारे में मैं एग्री करता हूं कि प्यारे भाई और बहनों, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हफ्ते में एक बार हम मिलते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, आप इस चीज का जो भाई राज ने कहा बुरा मत मानो। हम परिवार के समान हैं, और कृपा करके जब आप नौकरी के लिए निकलते हैं तो आप बराबर टाइम पे निकलते हैं। ओके, सो प्यारे भाई और बहनों, हम भी परमेश्वर के सेवक है, और परमेश्वर ने हमें इस धरती पर उसकी महिमा के लिए रखा हुआ है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम जगत के हमारी जिम्मेदारियों के प्रति हमारी डिसिप्लिन दिखाते हैं, हमारी जगत के सारी जिम्मेदारियां, काम धंधा नौकरी ऑफिस में के बारे में हम अपनी जिम्मेदारी या अपनी डिसिप्लिन दिखाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है हमारे बॉस का। तो हमारा बॉस गॉड से बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर के से हमारा बॉस बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम उसका डर रखते हैं। और ये सही भी है कि बड़ों का डर रखना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जो सबके ऊपर है, और हमारा परमेश्वर जिसकी पहचान हमें हुई है, और जिसकी स्तुति आराधना करने के लिए तुम एकत्र एक साथ आते हो, उसके लिए समय पर ज्वाइन होने की कोशिश करना। ब्रदर ने 9:45 का टाइम दिया, मैं कहूंगा 9:25 में ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। मैं कहता हूं 9:25 में ज्वाइन हो जाओ, आपको प्रभु जरूर आशीष देगा। और आगे आपके ऊपर है, आज्ञा पालन या डिसिप्लिन में रहना है नहीं रहना है, आप तय कर लो। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको हम नम्र विनती करें कि आप कृपा करके 9, 9:30 से पहले या 9:30 बजे ज्वाइन हो जाओ,
ताकि अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे। क्योंकि हम जब शुरू करते हैं ना तो कौन रहता है मालूम है क्या? ब्रदर राज रहता है, सिस्टर कृपावती और पापा जैन, इतने ही रहते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता है ना, एक छोटा सा परिवार है, 10-12 परिवारों का, फैमिलीज का परिवार है, एक कलीसिया है, तो सब साथ में आ जाओ और प्रभु आपको सबको आशीष देगा। गो अहेड। My help comes from the Lord who made heaven and earth. Psalm 121:2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Psalm 121:2. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Even if you make your dwelling the Most High, even the Lord, who is my refuge. Psalm 91, verse 8-9. इसीलिए तुम चिंता करते हैं, ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6 verses 31, 32, 33 and 34. My people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. 2 Chronicles 7:14. मोबाइल आएंगे नहीं पहले। अन्ना बोलते हैं। Not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you all? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be. John 14:1-3. Okay, praise God. Hallelujah. मैथ्यू 22:37 में वचन, स्मिता सिस्टर को वचन आया कि उन्होंने उससे पूछा कि व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है, which is the greatest commandment in the law. Okay, some Pharisees and scribes, ये लोग पूछने लगे, तो यीशु ने उनसे कहा कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख।
ये लोग यीशु को परखना चाहते थे और परख कर उसे पकड़ना चाहते थे। तो यीशु ने उनसे कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु परमेश्वर से पूरे सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से प्रेम कर। अरे भाई और बहनों, परमेश्वर तुमसे और हमसे और कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मांगता है। परमेश्वर हमसे हमारा प्यार चाहता है, जैसे आपके बच्चे आपका प्यार चाहते हैं ना, आपके बच्चे आपका प्यार चाहते हैं ना। द सेम वे योर एंड माय हेवनली फादर एक्सपेक्ट आवर लव इज अ लव। तो ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी, जैसे तू अपने से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का वचन हमें प्यार करने के लिए सिखाता है। प्रभु से प्रेम रखे और ये समय है कि हम परमेश्वर को और ज्यादा प्रेम दिखाएं, क्योंकि हम बहुत कठिन समय में रह रहे हैं। जैसे कि अभी हमने सुना, आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जरा सुनो सब लोग, इधर मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है, हमारे देश में और पूरे दुनिया में क्या होने वाला है। दिस इज लाइक प्रॉफिटिकल। कई दिनों में हमारे गवर्नमेंट ने बिल पास किया, किसान बिल ना, मालूम है ना आपने। 8 दिन में 15 बिल पास किए, जिसमें किसान के बारे में भी बिल था। ये बिल क्या है? अब सरकार जो किसानों से अन्न धान्य खरीदता था, दालें या चावल या गेहूं खरीदता था ना, अब आने वाले दिनों में सरकार किसानों से ये धान्य नहीं खरीदेगा और ये सारा धान्य वो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां हैं ना, जैसे अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला और बाकी सारी बड़ी बड़ी व्यापार और बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये सारा अन्न धान्य वे जाकर खरीदी करेंगे और अपने हिसाब से अपने दाम पर बेचेंगे। ओके, तो पहले अलग व्यवस्था थी ना, वहां एजेंट हुआ करते थे, व्यापारी, और वो खरीदते थे और मार्केट तक पहुंचाते थे। अब सरकार भी किसानों से धान्य खरीदता था और राशन में हमें सस्ते में दे देता था। अब सरकार अपने हाथ ऊपर उठा रही है और सरकार कहते हैं अब हम ये सब नहीं करेंगे, ये सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं तो वो खरीदेंगे और 100 रुपया दाल होगी तो वे बाहर बेचेंगे। अब एक्सपोर्ट करेंगे, वो लोग धान्य एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा देश किसानी करने वाला, खेती करने वाला देश है, तो हमारे देश में बहुत सारा अन्न पैदा होता है। तो अब क्या करेंगे, हमारा देश ज्यादा से ज्यादा अन्न धान्य जो है ग्रोसरी वो एक्सपोर्ट करेगी और यहाँ जो 100 रुपए में बेचता है वो वहां 400 में बेचेंगे। कोई भी दाल समझो हमारे यहाँ 200 रुपया किलो है, तो बाहर वे लोग 400 से बेचेंगे। वही दाम हमें हमारे इंडिया में उस दाम में खरीदना पड़ेगा। हमारे देश में जो उत्पन्न होता है अन्न धान्य वो हमें ही डबल रेट में खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से प्यारे भाई और बहनों, सब इंडिया की जितनी भी भारत की जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी सारी बातें हैं, जैसे कि रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए गए, अब किसानों की बारी है। किसानों का धान्य भी इन कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके अधीन कर दिया जाएगा, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि अमेजॉन कंपनी है, अभी अमेजॉन भी अभी घर तक राशन पहुंचाती है, आपको पता होगा। अब अमेजॉन कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है, हाथ रखने का मशीन पर इस तरीके से स्कैन हो जाएगा आपका हाथ, आपका पाम, और आप उसके द्वारा कुछ भी खरीदी कर पाएंगे। सो द वर्ल्ड, कृपा करके बीच में बोलो मत, द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स द रूल ऑफ एंटी क्राइस्ट। हमारी दुनिया, पूरी दुनिया एंटी क्राइस्ट के रूल के नजदीक पहुंच रही है। तो प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ वो आने से पहले
मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट प्रकट होने से पहले दुनिया की व्यवस्था एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक नई जागतिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, और उसकी वो तैयारी है। चाहकर भी तुम और हम अब इसको बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि ये पूरे यूनाइटेड नेशन से लेकर वो एक जागतिक संस्था जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या यूनाइटेड नेशंस या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, इनकी ये व्यवस्था है, और इन्होंने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए कोशिश शुरू कर दी है, और हम एक नई व्यवस्था में जाने वाले हैं। अब प्यारे भाई और बहनों, आपको पता होगा कि जैसे कि रेवलेशन 13 में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से सारी बातें उसके कंट्रोल में जानी चाहिए, और वो प्रकट होने से पहले ये सारी बातें जो है सरकार पूरी तरह से अपने प्रजा पर कंट्रोल करे। और आपको पता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नाम की अभी कोई चीज है नहीं है। हमारा देश पूरी तरह से कंट्रोल में गया है, तानाशाही और हुकुमशाही चल रही है, और यहाँ किसी का कोई सुना नहीं जा रहा है, और हम बहुत एक अलग दिनों में, संकट के दिनों में हम लोग जा रहे। मेरा आवाज क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर है? ओके। हम एक नई व्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, और इसमें से पीछे हम अभी नहीं जाने वाले हैं। सो इसलिए आपको ये सारी बातें देखकर कि वचन के अनुसार जिस तरह वो ऐसा करता है कि कोई खरीदी बिक्री कर न सके बिना उसके इजाजत, और उसकी तैयारी में पूरी दुनिया लगी हुई है, और जिनको बुद्धि है वो इन बातों को समझ ले कि हम किस प्रकार के दिनों में रह रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु के अधीनता में करें, और परमेश्वर जरूर हमारे आने वाले दिन में सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये सावधान रहना, हम बहुत कठिन समय में रह रहे हैं, और जो कुछ अपना सब कुछ है वो प्रभु को दे दो। अपना जीवन का नियंत्रण, अपने परिवार का नियंत्रण, अपने बच्चों का नियंत्रण, अपने काम धंधे का नियंत्रण, रोज और रोज अपने काम धंधे के लिए प्रार्थना करते रहो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहो। अब हमारे लिए थोड़ा समय बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। We have a very short time in this world, very short time. How many days, how many months, our years, we don't know, but we have very short time. We have very short time. तो उस हिसाब से अपने जीवन को ढाल दो, बना लो, और प्रभु के और करीब चले जाओ, प्रार्थना में और वचन में और प्रभु की सेवा में, अच्छे काम में उसके साथ चले जाओ। Let us go to book of Hebrew चैप्टर 11, और हम आज खत्म करेंगे उस चीज को, उस अध्याय को हम खत्म करेंगे। ओके, हमने गए संडे सुना मोसेस के बारे में, यानी कि किस तरह से लाल समुद्र को उन्होंने पार किया, फिर किस तरह यरीहो की शहरपनाहों को, यरीहो की दीवारों को गिराया गया। उन्होंने 6 दिन तक एक एक फेरा मारा, फिर उसके बाद 7वें दिन उन्होंने 7 बार चक्कर मारी, और याजकों ने तुतारी बजाई, और लोगों ने जय जयकार किया, और जैसे कि जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, बाइबल कहती है कि वो शहरपना, वो बड़ी दीवार, बड़ी मजबूत दीवार टूट पड़ी, और लोगों को अंदर जाने के रास्ते खोल दिए गए। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर आने वाले दिन में ये दुनिया में जितनी भी दीवारें हमारे लिए बनाई जा रही है, आज हमारे सामने एक दीवार खड़ी है। कौन सी दीवार मालूम है? उस दीवार का नाम क्या है? हेलो, हमारे सामने एक आज दीवार खड़ी है, कोई बता सकता है उस दीवार का नाम क्या है? एनीवन? लॉकडाउन, कोरोना की दीवार, लॉकडाउन की दीवार। ओके, सो जब परमेश्वर के लोग पूरे दुनिया भर में परमेश्वर से चलाएंगे, क्योंकि अब हम ना कनान देश में प्रवेश करने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अब इन्होंने भी कनान देश में प्रवेश करने किया था, लेकिन कुछ रुकावटें थी। लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने उनको कहा उन्हें वैसे उन्होंने आज्ञा पालन किया और दीवारें टूट गई और रास्ते खुल गए और सारे शत्रुओं का नाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज तुम्हारे मेरे सामने बहुत सारे बड़े बड़े शत्रु खड़े हैं। ओके, तो ये सारे शत्रु कितने भी बलाढ्य हो, कितने भी मजबूत हो, प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने और परमेश्वर की महाशक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। कुछ समय के लिए परमेश्वर उन्हें ये सब बातें करने देगा, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु तुम्हें और हमें इन सारे आपत्ति और विपत्तियों से, लॉकडाउन से भी, कोरोना वायरस से और इससे भी कोई भयानक भी बातें आ जाएगी तो भी तुम्हारा मेरा परमेश्वर हमें इसमें से छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी विश्वास से तुम और हम जी रहे हैं, और इसके लिए इन दिनों में हमें विश्वास करने वाली आंखें चाहिए, विश्वास करने वाला मन चाहिए। इसीलिए प्रभु से प्यार करो, अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से प्रेम करो, क्योंकि अब हमारे पास जीने के लिए और कोई भी सहारा नहीं है। हमारा जीना सिर्फ यीशु मसीह के लिए, हमारे प्रभु के लिए, और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तुम्हें और हमें इन दिनों में जीना है, क्योंकि अब इस दुनिया में हमारा जीवन बहुत कठिन बनता जा रहा है और हमारे दिन भी बहुत कम होते जा रहे हैं। Praise the Lord. So एक जगह हमारे सामने बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हमारे सामने लाल समुद्र है, हमारे सामने कोरोना वायरस है, हमारे सामने लॉकडाउन है, हमारे सामने आर्थिक समस्याएं हैं, हमारे सामने नौकरियां की समस्या है, हमारे सामने बहुत सारी तकलीफें हैं, बीमारियां आती है जाती है, बहुत तकलीफ है प्यारे भाई और बहनों। और कई लोगों को अलग अलग प्रकार की तकलीफों से जाना पड़ रहा है, घर से भी, बाहर से भी, अंदर से, बाहर से, सब जगह से प्रेशर और प्रेशर। इस प्रेशर में से प्रभु जरूर तुम्हें हमें छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं 32 वचन से हम देखते हैं, फ्रॉम 32 टू 39, 40, 32 to 40। பின்பு நான் என்ன சொல்லுவேன்? கிதியோன், பாராக், சிம்சோன், யெப்தா, தாவீது, சாமுவேல் என்பவர்களையும் தீர்க்கதரிசிகளையும் குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள், நீதியை நடப்பித்தார்கள், வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றார்கள், சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள், அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவித்தார்கள், பட்டய கருகுக்கு தப்பினார்கள், பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள், யுத்தத்தில் வல்லவர்கள் ஆனார்கள், அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள், ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள், வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை அடையும்படிக்கு விடுதலை பெற சம்மதியாமல் பாதிக்கப்பட்டார்கள். வேறு சிலர் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள், கல்லெறி உண்டார்கள், வாளால் அறுப்புண்டார்கள், பரீட்சை பார்க்கப்பட்டார்கள், பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு மரித்தார்கள், செம்மறியாட்டு தோள்களையும் வெள்ளாட்டு தோள்களையும் பொறுத்து கொண்டு திரிந்து குறைவையும் உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள். உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமாயிருக்கவில்லை. அவர்கள் வனாந்தரங்களிலேயும் மலைகளிலேயும் குகைகளிலேயும் பூமியின் வெடிப்புகளிலேயும் சிதறுண்டு அலைந்தார்கள். இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றோ வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள். அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூர்ணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார். आमीन। आमीन। इसमें इस पुस्तक का लेखक हमें सब नामों का उदाहरण दे रहा है। ये सब नाम बड़े बड़े नाम जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास में ये लोग मर गए, विश्वास में दुख संकट सहते हुए मर गए। और इन्होंने जो किया वो आज तुम्हारे और मेरे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है कि किस तरह संकट के में भी इन्होंने अपना विश्वास खोया नहीं। They stood fast in faith till the last breath. Okay, they lost their life but they did not give up their faith. उन्होंने अपना विश्वास छोड़ा नहीं। Bible says, वो कहता है कि मैं अब क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं कि गिदोन के बारे में आपको पता है, गिदोन कितना डरपोक था। मिद्यानियों से डरकर
अपना गेहूं छिपा रहा था दाकरस के खेती में, वो गेहूं झाड़ने का काम कर रहा था दाकरस के खेती में, क्योंकि वो मिद्यानियों से गेहूं को छिपाता था, क्योंकि मिद्यानी लोग आकर इनके गेहूं के फसलों को जलाकर भस्म करते थे और जला देते, उनको खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। पता है उन दिनों में क्या हो रहा था? जब परमेश्वर ने इन लोगों को शत्रुओं की अधीनता में कर दिया, तो ये यहूदी लोग जो भी बोते थे, सुन ध्यान से सुनना, ये जो भी बोते थे शत्रु आकर उसको नाश कर देते थे। सोचो, इतनी मेहनत के साथ वो खेत में बोते थे और वो फसल बढ़ती थी। जस्ट इमेजिन, वो फसल बढ़ती थी और जैसे बढ़ती थी सूख जाती थी, काटने के लिए तैयार होती थी, तब ये लोग आकर उसको जलाते थे। वाह, कितने खतरनाक, कितनी दुख भरी बात है। आप सोचो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। आप 30 दिन काम करते हो, 30 दिन 30 डेज आप मेहनत करते हो, लंबा सफर करते हो। कोई वापी में काम पे जाता है, कोई उमरगांव जाता है, कोई गुजरात, कोई किधर जाता है। और समझो, जब पगार तुम्हारे हाथ में आने का समय आ गया या फिर आया और अचानक कोई बीमारी आ गई, पूरा पगार खा लिया शैतान ने, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? इतनी मेहनत की। वैसे ही प्यारे भाई और बहनों, ये लोग बोते थे और मिद्यानी लोग आकर उनके फसलों को बर्बाद कर देते। लेकिन इस हालात में गिदोन को परमेश्वर ने खड़ा किया था, और किस तरह न्यायाधीश की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस में परमेश्वर ने उनको किस तरह ताड़ना दी, उनके पापों की वजह से, उनकी आज्ञा तोड़ने की वजह से, उनके बलवा की वजह से, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ के बाल और अन्य देवी देवताओं की पूजा की थी, और इस कारण परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तुम और हम विश्वासी होते हुए भी आज इस दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था की अधीनता में है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। हम लॉकडाउन में हैं, हमारे ऊपर कई सारे बंधन हैं, सोचो, परमेश्वर हमें इस दुनिया में रखा है, इस हालात में भी तुम्हें और हमें विश्वास करने की जरूरत है। इसमें भी तुम्हें और हमें विश्वास में स्थिर रहने की जरूरत है। वो कहता है कि इनके बारे में क्या मैं बताऊं, मुझे समय नहीं कि इनके उदाहरण मैं आपको दे दूं कि इन्होंने किस तरह से, वो कहता है, नाम कहता है गिदोन, बाराक, शमशोन, इब्ताह, दावीद, शमूएल और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। What does it mean? विश्वास के द्वारा। युद्ध लड़ने के लिए तो तलवार की जरूरत होती है, ओके? युद्ध लड़ने के लिए बम्बों की जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके पास ऐसे साधन नहीं थे, ओके? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो किस तरह से जी रहे थे। एक तो शत्रुओं के डर में जी रहे थे, और शत्रु उन पर हमला करते थे तब सब कुछ बर्बाद कर देते थे। लेकिन जब परमेश्वर उनके लिए कोई किस राजा को खड़ा कर देता था, युद्ध करने वालों को खड़ा कर देता था, तो परमेश्वर उनको उसकी ताकत से जय देता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके चमत्कारिक सामर्थ्य के द्वारा उनको जय देता था, विश्वास के द्वारा। और गॉड ने उसको कहा था ना, खड़े खड़े तुम उद्धार का काम देखो। जब ये लाल समुद्र के सामने खड़े हुए ना और लोग रोने लगे, जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी, लोग रोने लगे, कहने लगे, हम इस जंगल में मरने के लिए क्यों लाया? हम मिस्र देश में थे, वहीं अच्छे थे, क्यों यहां मरने के लिए लाया? अब क्योंकि अब यहां सामने लाल समुद्र है, पीछे फारो की सेना है, जाए तो कहां जाए? बाल बच्चे साथ में है, उनके पशु उनके साथ में, उनका सामान उनके साथ में, कहां जाए? लेकिन परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? तुम खड़े खड़े मेरा उद्धार का काम देखो, क्योंकि युद्ध लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मेरी है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको इस दुनिया से निकाला है, मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाला है, अब तुम्हारा बचना और तुम्हारा उद्धार मैं ही करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु हमारे लिए यही कहेगा ना, बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, डरो मत। मैं तुम्हें इस कोरोना वायरस या लॉकडाउन या आर्थिक संकट हो या और कोई संकट हो या फिर जो भी बातें हम देखते हो, इसमें से मैं, प्रभु कहता है, तुम्हें छुटकारा दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें इन दिनों में छुटकारा देगा,
क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ राज्य जीते। तुम्हें और हमें भी हमारे विश्वास के द्वारा इस दुनिया को जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास एक चीज है जो तुम्हें और हमें इस दुनिया पर जय दे देगी। ओके, धर्म के काम किए, राज्य जीते, धर्म के काम के, भले काम के, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। ओके, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त नहीं की। उनको कुछ बातों की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उनके दिनों में उनको वो बातें नहीं मिली, वो आशीष उनको उन दिनों में नहीं मिली। लेकिन उन्हें विश्वास में खड़े होकर अंत तक यहोवा के नाम से खड़े होकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। प्रेज़ गॉड। जो वो पाना चाहते थे, या जो परमेश्वर उनको देना चाहता था, परमेश्वर की ओर से उन्होंने उस समय पाया, लेकिन विश्वास में अंत तक बने रहे। मानो कि जो बातें दिखाई नहीं देती हैं वो हम देख रहे हैं, ऐसे वो जी रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उन्होंने देखा नहीं था कि क्या होने वाला, लेकिन दे स्टूड इन फेथ टिल द एंड। विश्वास में अंत तक बने रहे, हिले नहीं, नाराज नहीं हुए, कि उन्होंने छोड़ नहीं दिया। They did not give up. ओके, तो उन्होंने इस तरीके से किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया। मालूम है ना कौन थे आग में? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। आग की ज्वाला को ठंडा किया, उसमें गिरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके जीवित परमेश्वर को पहचाना था। आगे क्या होने वाला उनको कुछ पता नहीं था, but they stood in faith and ready to jump into the fire. वो उस आग में गिरने के लिए तैयार हो। जब गिरे तो वहां गिरने से पहले वहां आग को ठंडा करने के लिए यीशु मसीह पहले पहुंच गया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां उनको पता, यीशु को पता था कि परमेश्वर को पता था कि ये लोग विश्वास करने वाले और ये मेरे नाम की खातिर आग में कूदने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। तो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह वहां उतरा था, और जब उस राजा ने देखा तो उसने कहा, अरे मैंने तो 3 लोगों को डाल दिया था, ये चौथा कौन है? और चौथे का रूप तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। ओ प्रेज़ गॉड। सो इस तरीके से जब तुम और हम आग में जाते हैं, संकट की आग, ओके, संकट की आग, जब तुम्हें परेशानी आएगी, तुम्हारी नौकरी में आर्थिक तंगी आएगी, परिवार में समस्या आएगी, आप आग जैसे संकट से जाएंगे। यीशु मसीह कहता है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी माता तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारे जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। सो इन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग में गिरने के लिए तैयार हुए। आज विश्वासी इतने कमजोर हैं कि एक छोटी सी बात किसी ने अगर बोली तो हंगामा कर देते हैं। ओह प्रेज़ गॉड। एक छोटी सी बात अपने भाई ने या अपने पत्नी ने कही या अपने पति ने कही तो हंगामा कर देते हैं। आग का तो संकट छोड़ ही दो, लेकिन प्यारे भाई बहनों, छोटी छोटी बातों पर आज लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर से गुस्सा करते हैं, परमेश्वर से क्रोध करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर वैसा क्यों किया, उसको ऐसा दिया, मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसी बातें अविश्वास दिखाते हैं। इन्होंने ज्वाला को ठंडा कर दिया, ओके, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया। सो इन दिनों में जिस प्रकार से तुम गुजर रहे हो, जिस स्थिति से गुजर रहे हो, आपके लिए वो आग है। हालेलुया, आपके लिए वो आग है। लेकिन यही आग जब यीशु मसीह तुम्हारे संग रहेगा तो ठंडी कर देगा। हालेलुया। इतना संकट गहरा होगा, यीशु मसीह तुम्हारे हमारे संग रहेगा तो वो संकट मेरे लिए बोझ नहीं बनेगा, वो संकट मेरे लिए आशीष बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो संकट से तुम्हें और हमें आशीष ही मिलेगा, हमारी बढ़ोतरी होगी। ओके ओके। तलवार की धार से बच निकले, तलवार की धार से बच निकले। कई लोग तलवार से मारे गए, लेकिन कुछ लोग बचाए भी गए। लेकिन उन्होंने सामना किया, उन्होंने छोड़ा नहीं, तलवार से भागे नहीं, लेकिन वो बच निकले। परमेश्वर ने उनको बचाया। निर्बलता में बलवंत किए गए,
निर्बलता में बलवंत कीजिए। When I am weak, then I am strong. कौन कहता है? Who says? पौल पौल Paul. Praise the Lord. Paul कहता है जब मैं कमजोर हूं तभी मैं बलवान हूं, क्योंकि मेरी कमजोरी में तेरी ताकत काम में आती है। हालेलुया। Praise the Lord. So प्यारे भाई और बहनों, निर्बलता में परमेश्वर हमें बलवंत बना देता है। ओके ओके, ये हमारा परमेश्वर का काम है। जब हम निर्बल हो जाते हैं ना, तो ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये निर्बलता तुम्हारे मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कमजोरी में परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होती है, और तुम आकर गवाही देते कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया, वही किया, वो किया, ये किया, वो किया, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है और तुम परमेश्वर के साथ हो, और तुम्हारी निर्बलता में तुमने प्रभु को पुकार लिया और परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता की। Praise the Lord. लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर निकले। गिदोन डरपोक था, गिदोन को परमेश्वर भेजना चाहता था, लेकिन नहीं, वो कहता है मैं अपने कुल में बहुत छोटा हूं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूं, आई एम नॉट एबल टू डू इट, यू सेंड समबडी। जैसे मूसा ने भी कहा मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मुझे बोलने नहीं आता है, मेरे भाई को भेज देना। बट गॉड वांट्स द वीक पीपल दैट हिज नेम विल बी ग्लोरीफाइड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बलवान लोग नहीं चाहिए जो अपने आप में बलवान है, परमेश्वर को कमजोर लोग चाहिए जिनके द्वारा परमेश्वर महिमा उत्पन्न करता है। गिदोन डरता था वॉर में जाने के लिए, गिदोन डरता था, लेकिन गिदोन को परमेश्वर ने कहा तू इसी शक्ति से चला जा और उन मिद्यानियों को मार डाल, उसी शक्ति से। और जब वो चला गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा समय समय पर उसके ऊपर आता रहा, और जब भी मिद्यानी या उनके शत्रु उनके विरोध में होते थे, तो आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि किस तरह गिदोन ने लड़ाइयों को जीत लिया और वो वीर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। एक कमजोर डरपोक गिदोन बलवान बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की सुन ली, परमेश्वर पर भरोसा किया। हालेलुया। सो परमेश्वर को स्मार्ट लोग या परमेश्वर को बड़े बुद्धिमान लोग या मजबूत पहलवान नहीं चाहिए। मेरे जैसा तुम्हारा जैसा कमजोर भी चलता है, परमेश्वर उनको मजबूत बनाता है और उसके द्वारा उसकी महिमा करवाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मोसेस कहता है, ओ गॉड आई कैन नॉट टॉक, आई एम नॉट अ गुड व्हाट स्पीकर, मैं अच्छा एक वक्ता नहीं हूं, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तेरे मुंह में होऊंगा, मैं तेरे मुंह में होकर बातें करूंगा, आई विल स्पीक थ्रू यू। ओके। और परमेश्वर ने मोसेस को भेज दिया, मूसा गया और उसी मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने लाखों यहूदियों को मिस्र से बाहर निकाला। यही परमेश्वर की क्या है खासियत है, यही परमेश्वर की खासियत है कि हमारा परमेश्वर जो दुर्बल है इस दुनिया में, निर्बल है, उन लोगों को चुनता है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करवा और हमारे द्वारा जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको लज्जित करे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो प्रभु ने हमको चुना है। देखो तुम में से और हम में से कौन बड़े बड़े टाटा बिरला और अंबानी के खानदान से कोई है क्या? कोई है क्या? कोई नहीं ना। हम कहा, हमारा कोई कीमत भी नहीं है इस दुनिया में, हमारे लिए कोई जगह भी नहीं है। बट बाइबल सेज वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट। ओके। परमेश्वर हमको याजक और राजा के पुत्र, प्रिंस कहता है परमेश्वर। ओके, राजा के पुत्र कहता है। रॉयल प्रीस्टहुड है हम लोग। कोई बड़े खानदान से है क्या? नहीं, हम सब मामूली परिवार से आए हैं। कोई थोड़ा पढ़ा है, कोई कम पढ़ा हो, कोई बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन फिर भी प्रभु की महिमा उनके द्वारा हो रही है, क्योंकि ये परमेश्वर तुम्हारे और मेरे द्वारा करता है। वो लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार गिराया। इन्होंने विदेशियों को फौजों को मार गिराया। वो बलवान थे, ये 100 थे तो वो 1000 थे, या अगर 100 थे तो वो 1000 थे, लेकिन इन 100 लोगों ने 1000 लोगों को मार दिया। गिदोन की सेना कितनी थी? गिदोन की सेना कितनी थी? 300। उसके पास 32,000 लोग थे कुछ। परमेश्वर ने उनमें से परख कर 300 तक लाया। कितने तक लाया? 300 तक लाया। बोलता है नहीं, ये भी बहुत बड़े हैं, इनके द्वारा मैं तुम्हें जय दिलाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये जाएं और उनसे लड़े और जीतने के बाद कहे हमारे बल से हम जीत गए। हालेलुया।
हमारे बल से हम जीत गए, इसलिए परमेश्वर ने उनको छांट दिया। बोलता है जितने भी डरपोक लोग हैं वापस चले जाओ, और चले गए। और बचे 10,000 उसमें से भी छांट दिया और 300 तक लाया, और उनके लाखों में सैनिक, और ये 300 लोगों ने उन लोगों को हरा दिया। लेकिन किया किसने? परमेश्वर ने किया। ये 300 सिर्फ नाम मात्र थे। परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था कि तुम्हारी जय, तुम्हारा विजय तुम्हारे ताकत में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे पैसे में नहीं है, तुम्हारा जय मुझ में है। हालेलुया। ये है विश्वासी जीवन, ये है विश्वासी जीवन। कहते हैं कि उन्होंने फौजों को मार गिराया। वो बलवान थे, उनके पास अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पास अणुबम थे। अभी हमारे पास अणुबम है, एटम बम है, लेकिन ध्यान में रखना आने वाले दिन में इससे भी भयानक युद्ध में परमेश्वर, अमेरिका, रशिया, जापान, इतने भी बड़े बड़े राष्ट्र, उनके पास एटम बम है। ये एटम बम भी इजराइल पर हावी नहीं हो सकेंगे। ये एटम बम के बावजूद भी परमेश्वर इजराइल को जय दे देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जय देने वाला है। आने वाले दिन में जब ये युद्ध होगा ना, गोग मागोग का, हर्मगुदन का युद्ध होगा, तब देखेंगे हम ऊपर से परमेश्वर के काम को, किस तरह परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा और उनको डराएगा। और उनके बम इजराइल पर गिरेंगे ही नहीं, उनके बम और कहीं गिरेंगे। वो भेजेंगे मिसाइल को, लेकिन मिसाइल जाकर इजराइल पे नहीं गिरेगा, वो आसपास के मुस्लिम देशों पर गिर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई दिनों में हमने सुना है, हमने देखा है कि हमास और जो दूसरे आतंकवादी संगठन है आईसिस ने, उन्होंने इजराइल पर मिसाइल भेज दी कई बार, और मिसाइल जहां टारगेट था वहां नहीं गिरा, मिसाइल जाके दूसरी जगह पर गिर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर मिसाइल को भी गाइड करता है, भेजता है इंसान, लेकिन गाइड करता है परमेश्वर। और कहां गिरना है वो परमेश्वर तय करेगा। हालेलुया। वैसे ही प्यारे भाई और बहनों, आने वाले दिन में ये सारे लोग जो हैं वो लज्जित होंगे, जिन लोगों ने, जिन देशों ने बम बनाए हैं मारने के लिए, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए। अभी इजराइल पर हमला होने वाला आने वाले दिन में, ध्यान में रखना। हम रहेंगे और वहां एक युद्ध हमको देखने को मिलेगा। ये इस युद्ध को हम देखेंगे, और उसी के बीच उसके बाद में जो कुछ होने वाला है आप आंखों से देखेंगे। लेकिन कुछ तो इस साल में या अगले साल में कुछ तो कुछ होने वाला जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ न कुछ होने वाला है इस साल में, आने वाले साल में कुछ न कुछ बड़ा युद्ध होने वाला है और होकर रहेगा। और प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जरूर अपने लोगों में उसकी महिमा करवाएगा। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने तो मार खाते खाते मर गए, और छुटकारा नहीं चाहा। तो एक मारेगा चाटा कोई ना, तो हम डर जाते हैं, अरे बाप रे, मारा, मुझे मारा। लेकिन इन्होंने मार खाते खाते मर गए, छुटकारा नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी वो होना चाहते थे। उत्तम पुनरुत्थान के भागी वो होना चाहते थे। यानी कि उनका विश्वास इतना बड़ा था कि पुनरुत्थान होने के बाद मुझे बड़ा प्रतिफल मिलना चाहिए। हालेलुया। They wanted reward in heaven, not on earth. They wanted reward in heaven, not on earth. So you and me should strive together in faith to get the best reward in heaven, not on earth. यहाँ हमें अपमान मिलेगा, यहाँ हमें संकट मिलेगा, यहाँ हमारी निंदा होगी, यहाँ हमें लोग तुच्छ समझेंगे, लेकिन ध्यान में रखना हमारे लिए रिवॉर्ड हेवन में है। वो लोग मार खाते खाते बच गए। ध्यान में रखना, आज एक शब्द अगर किसी को हम बोलते हैं तो सहन नहीं होता है। घर में झगड़े हो जाते हैं, आसपास के लोगों में झगड़े हो जाते हैं, कलीसिया में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। वो लोग मार खाते खाते मर गए। ये क्यों लिखा हुआ है? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि उत्तम पुनरुत्थान वो चाहते थे। वाह, ये उसका मतलब बहुत गहरा है मेरे भाई और बहनों, इसका मतलब बहुत गहरा है। पुनरुत्थान में भी हम किस तरह से, हमारा उजियाला जो रहेगा ना, हमारी चमक, वो चमक में भी फर्क है। ताराओं में चमक है ना, ताराओं में चमक की भेद में है ना, कि तारा, अब आप आकाश में देखो, हर एक तारे के ना चमक जो है ना, शाइनिंग, वो अलग है। इन द सेम वे इन द हेवन, आप केवल हमारे कामों पर, हमारे विश्वास पर हमारी चमक रहेगी, हमारा रिवॉर्ड रहेगा। ओके,
सो वे लोग उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे बाय फेथ। कहीं एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने और बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किया गया, आरे से चिरे गए, उनको करवत से चिरा गया। सौ, लकड़ी काटने वाला सौ रहता ना, करवत, ठीक है, आरा, वो आरे से चिरे गए, उनका धीर धड़ से अलग कर दिया गया, पथराव किए गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में यानी कि गरीबी में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, स्किन्स ऑफ एनिमल्स के जो स्किन रहते हैं ना, उसको पहन के वो लोग घूम रहे थे अपने आप को छिपाने के लिए, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा उन्होंने। थ्रेश में दुख भोगते हुए, भेड़ बकरियों के खाले में ओढ़े हुए, इधर उधर मारे फिरते थे। उनके लिए घर नहीं था रहने के लिए, छत के नीचे नहीं रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अपने आप को छिपाते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों, तुम्हें और हमें ये विश्वास की जरूरत है। हमारे दिनों में अलग स्थिति है, हमारे ऊपर प्रेशर है, सरकार हमारे ऊपर नजर बनाए हुए है। अब हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है 100 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाएगा। कितने लोगों को? उसने भविष्यवाणी कर दी। डरो मत, मैं जो बोलता हूं सुनकर। इसने कहा, मोदी कहता है कि 100 करोड़ लोगों को हो जाएगा। मैं कहता हूं 100 करोड़ क्यों, बचे हुए सिर्फ 30 करोड़, तो अगर 100 करोड़ को होता है तो उनको भी हो जाएगा। ओके, सो प्यारे भाई बहनों, वो कहता है कि उस हमारे देश के पीएम ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ओके, और तुम्हारे कॉल्स और फिर तुम्हारी टेस्टिंग जबरदस्ती से की जाएगी, घर घर में जाकर, घर से निकालकर टेस्टिंग की जाएगी जबरदस्ती से। और क्योंकि इस चीज के द्वारा कहते हैं हमको कंट्रोल में लाना है, हमें कंट्रोल में लाना है कोरोना वायरस को, इस कारण सबको टेस्ट करवाना जरूरी होगा। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद बहुत भयानक है। ये मोदी का नहीं है, ये वहां से है, यूनाइटेड नेशन से है, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले, वन वर्ल्ड रिलीजन वाले, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, इनकी ये सारी चाल है, क्योंकि उनको चलाने वाला और कोई नहीं है, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है। आपको पता है, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज वर्किंग हार्ड टू गेट द होल वर्ल्ड इन हिज कंट्रोल। ओके, बिफोर दैट वी विल बी आउट फ्रॉम हियर। ओके, जब वो प्रकट होगा, इससे पहले हम इस दुनिया से निकाले जाएंगे, रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी और हम उस काल में नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विश्वास के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लेश हमें तब तक सहना पड़ेगा। और जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे, आज तुम कहते होंगे ना, ये संसार अब हमारे लिए योग्य नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर अस। अगर आपको लगता है जीने में मजा आता है तो जियो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे तो अब इस दुनिया में जीने के लिए मजा सचमुच नहीं आ रही है। हम हर दिन सोचता रहता हूं कब आएगा प्रभु, कब रैप्चर होगा, कब प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा। उसी ब्लेसेड होप का धन्य आशा के मैं बाट जोता रहता हूँ, राह देखता रहता हूँ कि कब हो जाएगा। ओके, मैं देखता रहता हूँ, संसार उनके लिए योग्य नहीं था। तुम्हारे लिए, मेरे लिए संसार योग्य नहीं है। ओके, विश्वासी के द्वारा इन सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। We stop here. परमेश्वर ने उन्होंने न देखे हुए भी बड़ा विश्वास दिखाया, फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली, लेकिन वो विश्वास में मरे, ये सोच के कि मुझे ऊपर प्रतिफल मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उनसे भी उत्तम बातें पहले से ठहराई हुई है। The great blessings that God has reserved for us in kingdom of heaven. Hallelujah. Great blessings. आज तुम और हम जिस स्थिति से जा रहे हैं,
उसमें बने रहो विश्वास में प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। और यीशु के आने के दिन तक बने रहो, अपने अपने परिवार के साथ प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, अकेले में प्रार्थना करो, जो भी करना है करो, लेकिन प्रभु के सानिध्य में चलते रहो। हनोक 300 साल प्रभु की संगति में चला, 300 साल। हम 10-15 साल 20 साल से चल रहे हैं, और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। हालेलुया। और वो उठा लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। आज तुम्हें और हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, उससे प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह आएगा और जरूर जरूर जल्दी ही जल्दी अपने लोगों को यहाँ से उठाकर ले जाएगा। हालेलुया। और इसी इंतजार में हम हैं, उन्हीं दिनों में हम रह रहे हैं। पूरे दुनिया भर में यीशु के आने का प्रचार हो रहा है, और आप लोग प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि प्रभु का आना जल्दी होगा और हम उसके साथ चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये विषय यहाँ खत्म होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमने 4 हफ्ते से हमने विश्वास के बारे में सुना, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपका विश्वास बहुत ही बड़ा है और बढ़ना चाहिए। बढ़ते रहो और बार बार पढ़ो उसको, ताकि परमेश्वर आपको उन वचनों के द्वारा सहायता करे। अपनी आंखें बंद करें और अपना दान जो रहेगा, दशमांश रहेगा, अपने हाथ में ले लो और प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से इस समय तेरा वचन जो तूने अपने लोगों के लिए हमारे लिए भेज दिया, इस वचन के द्वारा मेरी परिवार की और इन सारे परिवारों की सहायता करना, और सबों को इन दिनों में विश्वास में बने रहने के लिए सहायता करना। बोलने के लिए मुझे शब्द दिए, हिम्मत दिए प्रभु, पवित्र आत्मा का सहायता दिया। इस कारण मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वचन इन लोगों के लिए आशीष का वचन बन जाए, और ये वचन के द्वारा तेरे लोग और भी विश्वास में मजबूत हो जाए। ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ। इस समय तेरे भंडार में तेरे लोग जो भेंट लाएंगे प्रभु जी, वो भेंट उनके लिए आशीष कर, उनके लिए उनकी नौकरी, उनका काम धंधा तो उनके लिए आशीषित करना, और यीशु उन्हें किसी चीज की कमी ना होने देना। जिस कंपनी में वो काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां उनके लिए तो हालेलुया आशीष भेज दे प्रभु जी। हालेलुया। और जहां भी जाएंगे यूसुफ के समान उन्हें वहां ऊंचा उठा दे। हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक के समान जहां भी जाएंगे तो उन्हें वहां ऊंचा उठा दे, और प्रभु जी उनकी रक्षा करना, और उनके खातिर उनका काम धंधा नौकरी की कंपनी आशीषित करना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं पिता। अगले संडे हम मिलेंगे, तब तक हम सबों की रक्षा करना। आज शाम की प्रार्थना सभा को भी तो आशीषित करना प्रभु जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमेन। आमेन। आत्मावे कर्तृ सोदरी, आत्मावे कर्तृ हालेलुया। Just reminder, next Sunday, please try to join 9:30. Okay, please try to